کہ جہاں پر بھی جو بھی انسان بے گناہ مرتا ہے وہ نسل آدم کا خون ہے، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر، ریلیجیس بلیف کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر کسی کو گولی مارے یا کسی کی جنوسائیڈ کر سکے۔ یہ ابھی پھر سے جو وانا وزیرستان میں، سوات میں جو پھر سے ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جو دہشت گردوں کو لایا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی یہ دہشت گرد اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے آئے تھے اور یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ تو ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسے معاملات پھر سے اٹھنے لگے ہیں۔ یہ پیچھے ادھر سندھ سے لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں مسنگ پرسنز کے۔ ابھی ہمارے ادھر آنے سے پہلے ایک اور مظاہرہ ہو رہا تھا۔ کوئٹہ کے حالات دیکھیں، کراچی کے دیکھیں، اسلام آباد کے دیکھیں، پھر KPK کے حالات دیکھیں۔ اگر یہ حالات ان سے کنٹرول نہیں ہو سکتے اور یہ لوگ بضد ہے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم و ستم کو نہیں بھولیں اور نہ ہی تم لوگوں کو بھولنے دیں گے، اور ہم تم لوگوں کو معاف بھی نہیں کریں گے۔ ہم تم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں انصاف نہیں ملا، اور ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کی ماؤں کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے ہیں، ابھی بھی ان کی آنکھیں نم ہیں، ابھی بھی وہ اپنے بچوں کے قبروں پہ جاتے ہیں۔ جن کے باپ فوت ہوئے ہیں وہ اپنے برتھ ڈیز، اپنی سالگرہ باپ کی قبر پہ لے جا کے کیک کاٹتے ہیں، اپنی شادی کی سالگرہیں خواتین بیوائیں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ قبر پہ جا کے بیٹھ کے مناتی ہیں، مائیں سارا دن جا کے قبروں پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کون سا جنگل کا قانون ہے؟ یہ کیسی حکومتیں تھی جنہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ وہ ایک کمیونٹی کو جس کو بار بار ٹارگٹ کیا گیا اس کو انصاف دلا سکے۔ جو مچھ والا واقعہ ہوا تھا اس میں ہماری خواتین 11 لاشیں رکھ کر سامنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دعوت دیتے تھے کہ آپ آئیں ہماری بات سنیں۔ اس خاتون کے رونے کو، التجاؤں کو اور درخواست کو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے بلیک میل نہ کریں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا رتبہ اور معیار اس وقت کیا تھا اور اس خاتون کا کیا رتبہ تھا، کیا مقام تھا؟ وہ آپ سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ آ کر ہماری بات سنیں۔ آپ سربراہ ہیں، آپ ہمارے والد کی طرح ہیں، سربراہ ہیں، آپ آ کر ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں، ہماری غم سنیں، ہماری داستان سنیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں نہیں جاؤں گا جب تک وہ اپنے مردے نہیں دفناتے۔ آپ کے لیے تو یہ جتنے بھی حکمران ہیں ان کے لیے کہنا تو بہت آسان ہے کہ اتنے لوگ مر گئے، تعزیتی بیان چلا دو ٹی وی پہ اور بات ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے، ہیومن رائٹس کی طرف سے باقاعدہ ایک نیوٹرل کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن جا کر اس ہزارہ جینوسائیڈ کے مسئلے پر باقاعدہ اپنی انویسٹیگیشن کریں، اپنی ریکمنڈیشنز پیش کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم حقائق لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور جو لوگ، جو ادارے، جو بھی اس میں انوالو ہیں ان کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ شکریہ۔ یہ اپنے میگنیچیوڈ میں خاصے آپ سمجھ لیں کہ شدید نوعیت کے تھے، اور ان دو واقعات نے اس بات پر بھی ایک طرح سے تصدیق کی مہر ثبت کر دی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے معمولی واقعات نہیں ہیں، یہ ہزارہ قوم کی نسل کشی کے واقعات ہیں۔ کیونکہ جب آپ ایک خاص کمیونٹی کو بار بار، اور وہ جو کمیونٹی ہے، وہ جو طبقہ ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ نان وائلنٹ ہیں، وہ کسی کے خلاف
तशद्दुद के ज़राए इस्तेमाल नहीं करते। मैं फ़ातिमा आतिफ़ साहिबा से गुजारिश करूँगा, एक तो जो दो ये वाक़यात हैं इनकी तफसील आपको बताएं। आज हम एक दफ़ा फिर जमा हैं हर साल की तरह, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, और आज भी हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो है वो यही है कि हम जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा एरा हमने गुजारा है, उसको हम लोगों को भूलने ना दे कि हज़ारा के साथ, हज़ारा कम्युनिटी के साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं और किस तरह से परसिक्यूशन किया गया ओवर द पीरियड ऑफ 25 साल 24 साल, किस तरीके से हर रोज़, और कोयटा और बलूचिस्तान के स्पेशली कोयटा में हर गली में किस तरीके से हज़ारा को हरास किया गया, खौफ में मुब्तला रखा गया। हर कोयटा की हर सड़क, हर गली को हज़ारा कम्युनिटी के मासूम खून से रंगा गया और इतनी लाशें गिरी हज़ारा कम्युनिटी की के लाशें उठाते उठाते हमारे कमर टूट गए और हम में सकत ना रही कि हम मज़ीद लाशें उठा पाते। ये जो तकरीबन 25 साल 24 साल का दहशतगर्दी का सिलसिला है, ये कहने को तो आसान है कि हम एक दफ़ा बोल देते हैं कि 25 साल हो गए दहशतगर्दी को या हज़ारा जेनोसाइड को या परसिक्यूशन को। 25 सालों में हर दिन एक जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम की गई। हर रोज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया। हमारे जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है, जिसमें सोशल वर्कर, हमारे खिलाड़ी, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो बिल्कुल क्रीम थे, जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में अपने नाम कमाए थे, उनको टारगेट करने के साथ साथ आम हज़ारा कम्युनिटी मेंबर्स को भी टारगेट किया गया। और उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इनकी तरफ से देखने को मिले कि चलते चलते फायरिंग हो जाती है, कि दुकान में बैठे हुए कहीं पे आराम से उनके दुकान के ऊपर जाके उनको टारगेट किया गया। हत्ता कि ये जो 2013 में 10 जनवरी को अलमदार रोड के ऊपर और किरानी रोड पे 16 फरवरी को 2013 को जो मैसिव ब्लास्ट हुए, जिसमें सैकड़ों जाने गई। जो पहला ब्लास्ट हुआ उसमें 100 से ज़ायद जाने, इसी तरह जो किरानी रोड का ब्लास्ट हुआ उसमें भी तकरीबन 100 के करीब। ज़ख्मियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो अभी तक उसको बाकायदा फ़िगर हम नहीं बता सकते, लेकिन वो भी कोई 200 के करीब, जो लिस्ट बनाई गई उसके हिसाब से 200 के करीब ज़ख्मी थे। अब ये तो पहले होता था कि ज़ायरीन की बसों के ऊपर भी धमाके होते रहे और जो ज़ायरीन जाते थे ईरान की तरफ, उनको बसें रोक कर उनके चेहरों की शिनाख्त करके, उनके डॉक्यूमेंट शिनाख्ती कार्ड देख कर कि वो हज़ारा है, शिया है, उनको उतार कर उनकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कि लाइन में खड़ा करके उनको गोलियां दागी गई और उनको मार दिया गया। मज़ीद इस पर यह सितम कि ये जो 2013 में वाक़यात हुए थे रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर हुए, जिसमें अलमदार रोड का जो वाक़या हुआ उसमें हमारे एक जानी मानी हस्ती इरफान खुदी साहब भी उसमें मौजूद थे, जो इसी तरह मेरी तरह, आपकी तरह हज़ारा के लिए और बाकी तमाम इंसानों के लिए हमेशा इंसाफ के लिए खड़े होते थे। वो भी उसमें मौजूद थे, उनके बहनोई भी उसमें मौजूद थे। अलमदार रोड में पहला ब्लास्ट हुआ था बेसमेंट में स्नूकर क्लब में, और जब लोग उनके ज़ख्मियों के रेस्क्यू के लिए वहाँ पे गए थे तो दोबारा एम्बुलेंस के अंदर आतिशगीर मवाद बहुत बड़ी मिक़दार में एम्बुलेंस के अंदर छुपाकर उस स्पॉट पर पहुँचाया गया और वहाँ पे ब्लास्ट किया गया, जिसमें जर्नलिस्ट भी उसमें शहीद हुए और जो लोग रेस्क्यू करने के लिए ज़ख्मियों को बचाने के लिए गए थे वो भी उसमें शहीद हुए। उसके बाद जो 16 फरवरी को किरानी रोड में ब्लास्ट हुआ, उसमें बाकायदा पहले सिस्टमेटिक तरीके से वाटर क्राइसिस क्रिएट किया गया कि पानी की कमी है, फिर उसमें टैंकरों की आमद जामद जो है, आना जाना जो है वो फ्रीक्वेंट होती रही कि लोगों को मसला ना हो।
तकरीबन 1000 किलोग्राम के करीब दूसरा जो आतिशगीर मवाद था या जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर उस वाटर टैंक के अंदर लाके रेजिडेंशियल एरिया में लाके ब्लास्ट किया गया। अब इन वाक़यात को मैं ये कहती हूँ कि हमारे कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं, और हमारी एक वक्त था कि मैं कहती थी कि हमारी आबादियाँ वीरान हो गई है। जो कब्रिस्तान है हमारे, अगर कोई भी साहिब दिल जिसको इंसान से, इंसानियत से ज़रा सा भी उनसियत है, प्यार भी नहीं कहूँगी, वो एक दफ़ा जाकर देख ले कि जो हज़ारा कब्रिस्तान है और किरानी रोड या हज़ारा टाउन में जो कब्रिस्तान है, वो कैसे कैसे जवान जो है वहाँ पे मिट्टी के अंदर सो रहे हैं, इसी दहशतगर्दी का शिकार होकर कब्रों में मदफून हो गए, मिट्टी का हिस्सा बन गए। उनकी तस्वीरें ऊपर लगी हुई हैं। अगर वो आपके कुछ भी नहीं लगते, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे और वो कब्रिस्तान देखेंगे शोहदा का, तो आपका दिल फटने को आएगा। इस सूरत हाल में, इस तमाम सिचुएशन में, जो बहुत लंबा अरसा जो लोग मर गए वो तो चले गए, जो ज़िंदा लोग थे हज़ारा कम्युनिटी को, उनको दो लोकेलिटीज़ में महसूर कर दिया गया, अलमदार रोड में और हज़ारा टाउन में, कि उनको कहते थे कि ये ओपन एयर जेल्स में रहते हैं, यानी कि वो जेल के अंदर हैं। और चौकियाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो चौकियाँ तो हमारे लिए, शहरियों के लिए बनती थी कि हर शहरी या ख़ुद हज़ारा वहाँ से आते जाते तलाशियाँ देता था और अजियत का शिकार होकर अपने घरों की तरफ वो जाते थे। लेकिन वो जो चौकियाँ थी वो दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहीं। जो कम्युनिटी के लोग थे वो जिस ट्रामा से, जिस खौफ से, जिस अजियत से, जिस तरीक़े से उन्होंने अपनी ये सारी ज़िंदगी गुजारी है, वो अलग दास्तानें हैं। और अगर किसी एक ख़ानदान से एक भी फ़र्द शहीद हुआ है, दहशतगर्दी का शिकार हुआ है, वो पूरी ज़िंदगी जो है उसके ख़ानदान ने अभी तक उस अलमिये को, उस हादसे के नताइज को अभी तक वो भुगत रहे हैं। इसके जो साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या इसके जितने भी या पॉलिटिकल असरात हमारी कम्युनिटी के ऊपर हुए, वो भी अलग दास्तानें हैं, जिस पे अगर लिखा जाए तो किताबें उस पे लिखी जा सकती है। और एक एक शहीद की कहानी, एक एक शहीद किस तरीके से उनकी फैमिली सरवाइव कर रही है, वो भी अलग दास्तानें हैं जिसको बाकायदा देखने की ज़रूरत है और उसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। इन तमाम हालात से घबरा कर जो हमारी कम्युनिटी के लोग, जवान और फैमिलीज़ हालात से तंग आकर पाकिस्तान छोड़कर और कोयटा छोड़कर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मुंतकिल हुए, और फिर वो गैर कानूनी तरीक़ों से, कानूनी तरीक़ों से वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों की तरफ चले गए। इन रास्ते में भी उनके साथ जो चीज़ें हुई, वो भी जब ये कहानी लिखी जाएगी, जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो वो भी इसका हिस्सा होगा कि उसमें भी तकरीबन 700-750 के करीब वो लोग भी हैं जो समंदर बुर्द हो गए हैं, अपनी जानें बचाने के लिए गए हैं। दास्तानें कहेंगे कि बहुत आसान लफ्ज़ है, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसको हम जीते रहे हैं, और हमारी पता नहीं कितनी नस्लें इस दुख को, इस तकलीफ़ को, इसको हम सहेंगे और इसको हम जिएंगे। जो सबसे अलमनाक और जो सबसे कहूँगी कि इसका जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि आज तक ओवरऑल हज़ारा जेनोसाइड के ऊपर कोई इंसाफ नहीं किया गया, कोई किसी को गिरफ्तार आज तक नहीं किया गया। कि हालांकि जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता था, इसकी ज़िम्मेदारी क्लेम करने के लिए जो कलदम तंजीमें हैं उनकी तरफ से बाकायदा अखबारों में दिया जाता था कि ये हमने किया है काम और हम दोबारा भी करेंगे, हमने सेंचुरियाँ बनाई हैं और आगे भी हम सेंचुरियाँ बनाएंगे। यानी 100 लोग हमने मारे हैं एक साथ।
اور انہی کالعدم تنظیموں کے سربراہ ہمارے ان موجودہ نہیں جو گزشتہ حکومتیں تھیں انہی کے یار بھی تھے اور ہم پیالہ بھی تھے اور ہم نوالہ بھی تھے. تو باقاعدہ یہ ساری چیزیں سرپرستی میں کی گئی اور باقاعدہ یہ ساری چیزیں پلان تھی, سسٹمیٹک تھی, اور ہزارہ جینوسائیڈ کو جس طریقے سے کیری آؤٹ کیا گیا وہ کوئی یہ کہتے ہیں نا خلائی مخلوق, وہ بھی دہشت گرد خلائی مخلوق نہیں تھے کہ جو آسمان سے آتے تھے اور یہ واقعات اس طرح بم پھاڑ کے چلے جاتے تھے. وہ اسی پاکستان میں رہتے تھے اور آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں کسی کو بھی پکڑنا ان کے فون کے ذریعے, سیٹلائٹ کے ذریعے, ان کے ای میل کے ذریعے, ان کے کمپیوٹر سے کسی بھی طریقے سے پکڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ولنگنس ہو, اگر آپ کرنا چاہے تو. گزشتہ 4-5 حکومتیں برے طریقے سے فیل رہی ہے کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کو بالخصوص اور دوسری کمیونٹیز کو جو پاکستانی ہیں ان کو بھی تحفظ فراہم کرتے, اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ان کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو ان کو انصاف دلا سکیں.